हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो कर रहे हैं वो है सदगुरु अल्टीमेट स्पॉन्टेनिटी ठग लाइफ। तो देखते हैं भैया ये वीडियो। पर यस फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार ही आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब के बटन को क्लिक नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। एंड यस फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। People who talk to ghosts. Because they're not in talking terms with the living. What do you think about the concept of hell or heaven? See, those who have made a hell out of themselves are always aspiring to go to hell. I have 3 children. All three of them will express love. Will express love to me. This is, you need to understand this, your love for your country is not your personal romance. How you express your love? When you ask, where is God? What is God? Did you experience God? Did you know God? When you ask these questions, you are telling to yourself that my life is utter nonsense, A to Z. Brother asked a very good question. If you do not know something, why don't you just say, I do not know? Why can't you say that's not true? Because you want the drama to go on. Why? Why? Because you want the drama to go on. Say, I do not know. Why can't you say that's not true? Hindu, Muslim, Christian, everybody hates me because I am saying first control your populations. You've never lost your temper? You want me to know? Do I look like I'm incapable of that? It's just that I've never given the privilege to anybody. I have not given this privilege to anybody. They can make me happy, they can make me unhappy, they can make me angry, they can make me miserable. No, I kept this privilege to myself. Why not mutton ban or chicken ban, which are also reasons for greenhouse gas? Suppose I like to eat you. Ban is imposed and they cannot. You deny me my food. Every time I speak something, there is a group of people who are always waiting to mischievously edit those things and put out in a provocative way. If you're creating poison from within you and you want to live well. Well, when you're having a conversation, you say many things. In that you cut out 2 sentences and say, this is what he said. The cows are getting tortured just to get the milk from them, and it's about their reproductive system. And So we think it's better to milk them rather than slaughter them. So wait, according to Sadhguru, who believes that cows should be treated like mothers, cows have the following choices. 1. They are born to be raped. To be raped. To be raped. It's just ridiculous stuff. So I don't respond to those things simply because it's obvious they are motivated people. We found out that there is this dominant perception about Sadhguru being right-wing. Though you have tried to explain it earlier as well, we found out See, you cannot eat a human being. Why? Because it's a human being. Now, we drank the milk of the cow, we have shared emotions with the cow. We don't see it as separate because in the villages the cow lives in your house. There is no bond somewhere, it lives with you in the same house. Intelligence has become lethargic because they believe something. Everybody believes some nonsense. We believe that he was the Messiah translated Christ. We believe that he was born miraculously without any male intervention, which many modern day Christians today do not believe. We believe that he gave life to the dead with God's permission. To make them understand the stupidity of their thought, it will take a whole lot of time. Where does this Brahma, Vishnu and Shiva come in between? Where? There is no Brahma mentioned in the Quran. Bang. There is no Shiva mentioned in the Quran. Bang. There is no Jesus mentioned in the Quran that he is God. Bang. It's mentioned in the Quran, he is the messenger of God. This is a godless culture. This is a godless culture. This is a godless culture, you must understand this. In this culture,
We always told you your life is your karma. Yes or no? You forgot it? We've been telling you forever, your life is entirely your making. There's nobody managing you from there. But this we have turned it, and now we are also start looking up. Uparwala, you're all engineering students. You tell me, is it a round planet I'm asking you? Yes. Is it spinning? You are not even on the North Pole. You are at this Chennai. Here, if you look up and the planet is spinning, you are inevitably looking up in the wrong direction. You don't even know which is up. In this cosmos, do you know which is up and which is down? Hello? Is it somewhere marked this side up? Can you ever figure out which side is up in this cosmos? No? Then you're looking up at what? When you do not even know what is up, how do you know who is up? And he asked very good questions. Always difficult questions, very good questions. Kabalida, which is a rapid fire round. When you fire, I also fire, all right? Kabalida. The one thing you wish you could change about the world. Human beings. Kabalida. So काफ़ी अच्छा था और वेरी नाइसली लॉजिकल उन्होंने डिफेंड किए। क्वेश्चंस कई बार ऐसे होते हैं कि उसको समझाने के लिए ऐसा ही बोलना पड़ता है। कई बार आपको अगर आप सीधे तरीके से समझाएं तो दूसरे बंदे समझ नहीं पाते, इसलिए इस तरीके से कई बार बोला जा रहा है। मगर एक मैं पॉइंट कहूँगा जिसमें मैं कहूँगा कि ये सही है कि अगर हम ऊपर देखते हैं तो अगर अर्थ गोल है, राइट, तो अगर ऊपर देख रहे हैं तो आप अवे फ्रॉम अर्थ देख रहे हैं, राइट, अवे फ्रॉम, ये अर्थ है, अर्थ रोटेट करिए, चाहे अब आप वहाँ पे जो बैठा हुआ इंसान ऊपर देख रहा है वो स्काई में देख रहा है, एट एनी पॉइंट अर्थ से अवे देख रहा है, विच इज़ करेक्ट कि आप अर्थ से अवे देख रहे हैं। और भगवान जैसे कहते हैं कि भगवान, अगर आप सोचें कि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं तो किसी प्लैनेट में भगवान रहते हैं, परंतु ये इससे डीप, तो इसमें थोड़ा लॉजिक है कि ऊपर क्यों देख रहे हैं। अब ज़मीन में तो कोई देखेगा नहीं, कि ज़मीन में देखेगा तो आप थ्रू द अर्थ देख रहे हैं, बट ऊपर देख रहे हैं तो वेर एवर यू आर लुकिंग अप इट इज़ आउटसाइड। अगर मैं ऊपर देखता हूँ तो आई एम लुकिंग इन स्पेस। आपको तारा नजर आ रहे हैं, तारे नजर आ रहे हैं, यू लुकिंग इन स्पेस, सो दैट इज़ राइट। सो वी लुक अप की टू द स्टार्स, जो स्पेस में कि कहीं देयर इज सम गॉड ओवर देयर, तो वो बात अलग थी। मगर इनके रिस्पॉन्सेज जो हैं दे आर वेरी गुड एंड लॉजिकल। एंड मैं यही कहूँगा जो इनमें से जो क्वेश्चंस थे, जो उन्होंने एक पॉइंट अच्छा कहा था, जो इसलिए होता है क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया है कि लोग जो हैं चीज़ों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं। कोई इंसान कोई डिस्क्राइब कर रहा है तो उसने एक पूरा पैराग्राफ कहा है लोगों को समझाने के लिए, पहले वो कुछ कह रहा है, फिर बीच में कुछ कह रहा है, बाद में कुछ कह रहा है, वो अपनी पूरी अगर आप पूरी की पूरी चीज़ को देखते हैं यू विल अंडरस्टैंड इट। अब बीच में से आप एक दो सेंटेंस निकाल दें और फिर बोल दें कि ऐसा बोल रहे हैं तो दैट इज़ स्टुपिडिटी। वो तो फिर लोगों को समझ आना चाहिए। देखिए कि इसलिए मैं यही कहूँगा कि लोगों को जब भी हम न्यूज़ मान लीजिए देख रहे हैं, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, या फिर हम कभी भी आते हैं ऐसे कहते हैं कि अच्छा जी प्राइम मिनिस्टर जी ने ये कोट दे दिया, प्रेसिडेंट किसी और कंट्री के ये कोट दे दिया, इसने ये बोल दिया, एक लाइन भेज के ट्विटर में डाल देते हैं लोग। बट द पॉइंट इज़ आपको बोलना चाहिए कि नहीं, मैं पूरा कंटेक्स्ट देखना चाहूँगा, क्या क्वेश्चन था और पूरा जवाब क्या था, फिर आपको पता लगेगा उस इंसान ने क्या बोला। इससे पहले कि आप ये बोलने लगे कि ये मतलब अगले बंदे ने गलत चीज़ बोल दी। और दूसरा जैसे कह रहे हैं कि गॉडलेस, उसमें गॉडलेस की बात ये है कि इवेंचुअली ये होता है कि हम कहते हैं कि एक सुपर पावर है, एक एंटिटी है, सुपर पावर है, आप उसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं, राइट। एक ही सुपर पावर, एक ही एंटिटी, उसे किसी भी नाम से कर सकते हैं, परंतु ईज के लिए जिससे आप आसानी से पूजा कर सके, ये मूर्तियां बनाई गई थी। मूर्तियां हैं, आप आसानी से पूजा कर सके। आपको लगे आपके घर में भगवान बैठे हैं तो आप डिसिप्लिन रहेंगे। अगर आपको मान लीजिए आपके घर में आपकी मदर हो, फादर हो, तो आप डिसिप्लिन रहते हैं। उसी तरीके से आइडल्स हैं कि घर में तुम्हारे भगवान है, तुम बुरा करोगे। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल
पूरा सिस्टम है प्रैक्टिकल कि अगर आप हर एक के घर में अगर मंदिर बना दे भगवान है तो कैसा बुरा करेगा, बोलेगा भगवान बैठे मैं कैसे कर सकता हूँ, राइट। इन रियलिटी ये आपको सिखा रहे हैं कि अगर भगवान यहाँ बैठे हैं, अगर नहीं भी होते तो हिंदुइज्म बोलता है भगवान वहां बैठे हैं, मगर लोग भूल जाते हैं कि भगवान है, वो देख रहे हैं। असल में भगवान तो आपके अंदर है। अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा जो सुपर सोल है आपके अंदर है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। भगवान ने ऐसा सिस्टम तो किया नहीं था कि वो लॉजिकली हर इंसान को मॉनिटर कर रहा है, उसने मॉनिटरिंग चिप जो है आपके अंदर लगा रखा है इन अ वे। अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में पैदा हुए हैं आपको लगता है तो आपके अंदर ही वो जो इंफॉर्मेशन का बीकन है जो आपको ऑब्जर्व करके ट्रांसमिट कर रहा है, राइट, इन अ वे। तो इसीलिए कहते हैं कि अब जब इंसान ये भूल जाता है, तो जो लोग भूल जाते हैं, नहीं रियलाइज करते कि गॉड इज एवरीवेयर, उनके लिए मूर्ति बनानी पड़ती है कि अब तो समझो ये रे भगवान। तो इट इज अ वेरी गुड रिलीजन। और जैसे अगर आप सभी रिलीजन्स अच्छे होते हैं, पहली बात तो यह, परंतु कुछ लोगों ने अपने रिलीजन्स को चेंज कर दिया है जिससे उनको पावर चाहिए, कंट्रोल चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि कई ऐसे रिलीजन हैं जिन्होंने चीज़ें उसमें से निकाल दी हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं, बट अगर कोई इंसान ओरिजिनल अपनी ग्रंथ पढ़े, जो भी उनकी होली बुक है, अगर हर इंसान जिसका कोई भी रिलीजन हो ओरिजिनल पढ़े और उसका एग्जैक्ट सेंस निकालने की कोशिश करे, तो दे विल फाइंड कि सभी रिलीजन्स में एक कॉमन बातें होती हैं जो आपको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती हैं। और जो गीता में तो अच्छी, भगवत गीता में अच्छी बात यह है कि उसमें संस्कृत में लिखा है। आप संस्कृत का ट्रांसलेशन कर लीजिए अपनी लैंग्वेज में, आपको यूं पता लग जाएगा क्या लिखा हुआ है। औरों के कुछ ग्रंथों में ऐसा होता है कि इंग्लिश बड़े पुराने ज़माने की है, वो अपने कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, जब लिखी गई थी वो किताब, जब उन्होंने लिखी है होली बुक, तो उस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, उस ज़माने में मतलब ये था वो था, उसके हिसाब से लिखी। तो आपको आज के ज़माने में इंटरप्रेट करने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है कि वो क्या बताने की कोशिश करें, क्योंकि वो अपने माहौल के समय की बता रहा है बात। मगर भगवत गीता में यूनिवर्सल तरीके से लिखा है, संस्कृत में सीधी बात लिखी है, आप ट्रांसलेट करिए, आज भी रेलेवेंट है। आपको पता करने की जरूरत नहीं कि उस समय कैसा एनवायरनमेंट था, उस समय क्या हालात है, उस समय कैसा जिंदगी, आपको पता करने की जरूरत नहीं है। आप भगवत गीता पढ़िए, संस्कृत को ट्रांसलेट करिए, स्ट्रेट आपको पता लगेगा ओ माय गॉड, तो आज की बात कह रहे हैं, ये तो अभी भी रेले, हर चीज जो कह रहे हैं। सिर्फ थोड़ी बहुत मैं कहूंगा भगवत गीता में कुछ कंटेक्स्ट चाहिए, वो सैक्रिफाइस का है कि जब आप एनिमल सैक्रिफाइस करते हैं या किसी चीज का, फिर आज की ट्रांसलेशन में होता है कि आप जो चीज आपको बहुत पसंद है उसका अगर आप सैक्रिफाइस करते हैं तो यही नेट रिजल्ट बता रहे हैं। तो आप बहुत आसानी से प्रैक्टिकली उसको कन्वर्ट करके बोल सकते हैं, ओ सैक्रिफाइस का मतलब ये है कि अगर मुझे शुद्ध करना है तो मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? जो आपको बहुत पसंद है, और अपने तरीके सैक्रिफाइस, आपको भगवान बहुत मौके देता है सैक्रिफाइस करने के। बट सदगुरु में वापस आए तो काफ़ी चीज़ें जो है मैं कहूँगा कि हर जो गुरु होता है, राइट, हर गुरु होता है, उसका काम ये होता है कि जो हिंदुइज्म की बॉडी ऑफ लैंग्वेज है, तो हिंदुइज्म के जो वेदास हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, उसको किस आसानी से लोगों तक कैसे पहुंचा सके। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप सीधा वेदा ही पढ़ सकते हैं। आप इंटेलिजेंट, आप भगवत गीता पढ़िए, आप स्ट्रेट सोर्स में जाइए। अगर कोई ऋग्वेदा पढ़ता है, सारे वेदा पढ़ता है, ठीक है, साथ में वो भगवत गीता पढ़ता है, सब चीजें पढ़ लेता है, तो उसको लगेगा अच्छा जो आप बोल रहे हैं वो यही तो है, या यही तो है, वो यही तो बोल रहे हैं। उनका सिर्फ ये है कि जो लोग नहीं पढ़ना चाहते या जो लोगों को लगता है बहुत डिफिकल्ट है, उनको किसी तरीके से उनकी भाषा में समझा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, इफ यू आर रियली एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट, तो आप एक्चुअली उसको पढ़िए और आपको रियलाइज होगा कि सभी साधु एक ही बात आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा लोअर करके कि आपके लेवल तक आपको समझ आ जाए। तो यस फ्रेंड्स, वीडियो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे उन्होंने दिखाए कि कैसी सिचुएशंस में उन्होंने कैसे आंसर्स दिए उन क्वेश्चंस के। तो होप करते हैं आपने भी एंजॉय किया होगा, और हस्बैंड ने भी अपने थॉट्स शेयर किए, काफी अच्छे थॉट्स थे, तो वो भी आपको पसंद आए होंगे। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।